Hello, welcome to our social science class. The chapter we are taking, that is the rise of nationalism in Europe. Till now we have completed 2 sessions, and in first session we have completed rise of nationalism in France and Napoleonic Code and Napoleonic reforms. In second session, Austrian Empire, a patchwork of many nations, liberal nationalism in 2 spheres, that is in economic sphere and political sphere. Then conservatism after 1815, which is known as Vienna Congress. Then the rise of revolutionaries, Mazzini, formation of secret society by Mazzini, that is young Europe and young Italy. These are the main teaching points in those 2 classes. Now today we'll start the age of revolutions, 1830, 1848. These 2 years, this phase specifically, it was known as the era of revolutions. In many places in Europe, you will find the revolutions will start. Why? In one way, the conservative regimes tried to consolidate their power, because this is the time when conservatism will shattered, because the liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states and the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. We'll discuss about Italian unification, German unification, Ottoman Empire later on. So, but it started, the formation of nation state in those areas started since now. The first upheaval took place in France in July 1830. So 1830 इसलिए कहते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन. पहला स्टार्ट हुआ जुलाई में. द बर्बन किंग्स, आपको याद होगा कांग्रेस ऑफ वियना में बर्बन किंग्स को रेस्टोर किया गया था फ्रांस में. द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रेस्टोर्ड to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. तो फ्रांस में अभी अगेन मोनार्किकल या कंजर्वेटिज्म हैज़ गॉन. तो लिबरल रिवोल्यूशन स्टार्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुआ. हेड कौन है? लुई फिलिप. दैट इज़ द रीज़न ये जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में, इसलिए दैट इज व्हेन फ्रांस sneezes Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. This is the remark given by Metternich. स्टार्ट हुआ फ्रांस में, इसीलिए कहते हैं व्हेन फ्रांस स्नीजेस, फ्रांस को अगर छींक आ जाती है, बाकी रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, बाकी यूरोप में ठंड हो जाता है, मैंने ठंड लग जाती है. दैट मीन्स फ्रांस में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस स्प्रेड हो जाता है इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप. तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या स्टार्टिंग प्लेस होता है फ्रांस, बिकॉज फ्रांस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की at the outset. Then the July Revolution sparked an uprising. July Revolution means that is in 1848 जुलाई में, उसी को जुलाई रिवोल्यूशन कहते हैं. The July Revolution sparked an uprising in Brussels. Brussels, you might have heard the name, the capital city of Belgium. In civics आप पढ़े हुए हो, that is power sharing स्टेट. बाय दैट टाइम इससे कंजर्वेटिव पढ़े होंगे, याद होगा. तो बेल्जियम किसके साथ मिला हुआ था? यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड्स के साथ. नाउ
July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. तो बेल्जियम अलग हो गया नेदरलैंड से. नाउ ऑल्सो देयर आर टू स्टेट्स, बेल्जियम एंड नेदरलैंड. फ्रांस को प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय में ये जो वियना कांग्रेस में नेदरलैंड्स बेल्जियम मिल गए थे. उन दो कंट्री को मिला दिया गया था. हियर मेन पार्ट ये पैराग्राफ में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, an event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. This is 3 marks में क्वेश्चन आता है. Greek War of Independence. Greece had been part of Ottoman Empire. Ottoman Empire मतलब तुर्की एम्पायर का नाम था Ottoman Empire. Since the 15th century, the growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greek, which began in 1821. ये पूरा ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टोरी है. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर. उनको बाहर से भी जो ग्रीक पीपल रहते थे उनसे भी उनको सपोर्ट मिला. पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशंस एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर. ऑटोमन तुर्की मुस्लिम एम्पायर था. तो अगर हम देखेंगे यूरोप एंशियंट सिविलाइजेशन में देयर आर 5 सिविलाइजेशन. इंडिया का आयरन एज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, देन ईरानियन सिविलाइजेशन. इन यूरोप में ग्रीक सिविलाइजेशन एंड रोमन सिविलाइजेशन. तो ग्रीक एक एडवांस सिविलाइजेशन था इन एंशियंट टाइम. सो उसी को रिवाइवल करके द पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. यूरोप का वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस का जो ग्लोरी है उसको लेके मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर. यहाँ पे द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824. फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece as an independent nation. Here, based on these, you may get the short questions, and this may be of 3 mark questions. Describe the Greek War of Independence. Or which treaty recognized Greece as an independent nation? Yeah, when it was being done. Who was that poet who supported the Greek War of Independence? Like that, you can get the small questions. Here next part आएगा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को. रोमांटिक वर्ड तो हम यूज करते हैं एज इट इज़. तो रोमांटिसिज्म जो है या रोमांटिक इमेजिनेशन ऑल्सो हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन राइज ऑफ नेशनल फीलिंग. ये 5 मार्क में क्वेश्चन आता है. हाउ रोमांटिसिज्म developed the national feeling among the people. तो रोमांटिक पहले है. रोमांटिसिज्म क्या है या रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. कल्चर, हियर ऑल्सो सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी में. कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन. कल्चर में आर्ट, poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. तो देखेंगे आगे कैसा है. रोमांटिसिज्म मतलब क्या है? रोमांटिसिज्म है एक कल्चरल मूवमेंट. ये जो कल्चर है आगे, पोइट्री, ये सारे स्टोरीज, म्यूजिक, कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a
particular form of nationalist sentiment. Romanticism means. The Romanticism a cultural movement. It is a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Taking into this art, poetry, ये जो पुराने उसी को राइटिंग्स में थ्रू में, आर्ट थ्रू में, स्टोरीज थ्रू में, म्यूजिक थ्रू में, दे विल ट्राई टू इम्बाइब द नेशनल फीलिंग एमोंग द पीपल. तो इसलिए उसे कहते हैं रोमांटिसिज्म. रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन. हर चीज़ में रीजन ढूंढना है, तर्क करना है, आर्गूमेंट करना है. रोमांटिसिज्म में क्या है, इमेजिनेशन होता है जिसमें कोई माने स्वप्न होता है ज़्यादा. रीजन तो दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. हर टाइम में क्या साइंस रीजन. एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशंस. दे फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशंस में फोकस करना है. इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. So this is Romanticism. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. Common cultural ग्रीक में या कहीं पे हमारे सेम कल्चरल था इन यूरोप, वो ला के वहाँ से किसी ये में दे विल ट्राई टू डेवलप द नेशनल फीलिंग. अदर रोमांटिक साचेस, ये क्वेश्चन 1 मार्क में हो सकता है. जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रेड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. That was common people means दास वर्ग. उस समय में जर्मन वॉज नॉट ए नेशन, इसलिए वो कहें कि ट्रू जर्मन फीलिंग्स लाना है थ्रू कल्चर. इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस that the true spirit of the nation was popularized. इसके थ्रू में आपको एग्जाम्पल में आएगा जो ये रोमांटिसिज्म में किस में इम्पोर्टेंस दिया गया. द एम्फासिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस who are mostly illiterate. तो रिवाइवल करेंगे, जैसे इंडिया में भी रिवाइवल ऑफ पास्ट वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. सो डज हियर द एम्फासिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज या लोकल फोकलोर्स वगैरह को रिवाइव करने मेन मोटो तो था ही, लेकिन ये ओनली मोटो नहीं था, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु आर मोस्टली इलिटरेट. इलिटरेट लोगों को क्या बोल के सुनेंगे, सोचेंगे. दिस वाज एस्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड. यहाँ पे क्वेश्चन आता है पोलैंड या रोमांटिसिज्म हाउ इट डेवलप द नेशनल फीलिंग. यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ पोलैंड. दिस टाइप ऑफ रोमांटिसिज्म जो राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, दैट वाज इन पोलैंड, which had been partitioned at the end of the 18th century by great powers. पोलैंड रशिया का वन पार्ट था, रशिया साइड में वन पार्ट था, याद किए होगे तो. which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया. वन साइड ऑस्ट्रिया थोड़ा ले लिया था, अदर साइड रशिया ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में प्रशिया, साउदर्न और साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रिया ले लिया था. इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी. बाय द टाइम पोलैंड का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं, आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादातर. नेशनल फीलिंग वेर केप्ट अलाइव, क्योंकि जो पोलिश पीपुल थे, जो पोलैंड पीपुल थे, वो चाहते थे पोलैंड बनाए, तो एक नेशनल फीलिंग्स वेर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. तो दैट वाज थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. करोल, ये क्वेश्चन आता है. कुर्पिन्स्की फॉर एग्जाम्पल्स celebrated the national struggle through his operas.
and music, turning folk dances like the Polonaise, mazurka, ये दो डांस फोक डांस, ये क्वेश्चंस 1 मार्क में आ सकता है, इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स. कभी क्वेश्चंस थे हाउ लैंग्वेज प्लेड, यहाँ पे सेम इन दिस केस लैंग्वेज टू played an important role developing nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. अगर आप याद किए होंगे रशियन रिवोल्यूशन में नॉन रशियंस दे वांटेड इक्वालिटी, तो नॉन रशियंस मतलब पोलैंड वाज ए पार्ट ऑफ रशिया, व्हेन इट वाज ए पार्ट ऑफ रशिया वहाँ पे दे वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न रशियन लैंग्वेज, not Russian, not Polish language. So here Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. तो एम्पायर था रशिया, काफ़ी एरिया को लेकर था, लेकिन देयर रशिया वाज द मेन लैंग्वेज टू टॉट, अदर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. कुछ हो नहीं पाया, लेकिन रिवोल्यूशन, दिस इज द एज ऑफ रिवोल्यूशन, देख रहे हो, इस रिवोल्यूशन में एक सक्सेसफुल हुआ ग्रीक, बट सारे सक्सेसफुल होंगे जरूरी नहीं है, बट दे हैव स्टार्टेड. Following this, many members of clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and all religious instruction. Now they नहीं रशिया नहीं सुनेंगे, पोलिश लैंग्वेज में ही सारे सरमन देंगे या टीचिंग्स देंगे. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities. साइबेरिया इज ए पार्ट ऑफ रशिया, साइबेरियन डेजर्ट कहते हैं ईस्टर्न साइड में, वहाँ भेज देते हैं, हार्ड क्लाइमेट है, एक्साइल में उसी एरिया में जाओ, एंड पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन. दैट इज, इसी के चलते तो रशिया में रिवोल्यूशन हुआ. नॉन रशियंस भी उसके पार्ट थे, सोल्जर्स थे, नॉन रशियंस थे, आप पढ़े हो लास्ट ईयर. द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल. Here it is, the use of Polish language seen to be a symbol of struggle against Russian dominance. तो ये गया रोमांटिसिज्म. 1 क्वेश्चन आता है, आइदर 5 मार्क्स और मेनी स्मॉल क्वेश्चन. नेक्स्ट आता है, ये कॉमन क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है लास्ट एग्जाम में. व्हाई इज इट सेड दैट The 1830s were the year of great hardship in Europe. Explain. ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली आता रहता है. Hunger, hardship and popular revolt. The 1830s were the years of great economic hardship in Europe. रिवोल्यूशन तो है ही, और इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब काफ़ी टॉप टाइम था, लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी होने लगा. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population. This is one enormous increase in population all over Europe. In most countries, there were more seekers of jobs than employment. तो job seekers ज़्यादा थे than the employment. Population from rural areas migrated to the cities to live इन ओवरक्राउडेड स्लम्स. यही तो प्रॉब्लम होता है. जैसे मैनी ऑफ आर पीपल ऑफ उड़ीसा, दे आर इन आउटसाइड स्टेट्स, कैसे अभी आने के लिए चाह रहे हैं, तो जॉब ढूंढने के लिए कहीं कहीं जाते रहते हैं. तो ऐसे ही माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, चाहे वो स्लम में रहें कैसे रहें, जॉब के लिए जाके रहेंगे. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेर ऑफन फेस्ड विथ स्टीफ कॉम्पिटिशन्स. खाली वो तो प्रॉब्लम था, पॉपुलेशन प्रॉब्लम रहा, जॉब प्रॉब्लम रहा. नाउ स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉब्लम था. टाउन्स वेर ऑफन
faced with steep competition from imports of cheap machines made goods in England. वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, पड़े हुए हो तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो गुड्स होते हैं चीपर होंगे, ज़्यादा बनते हैं। और ये जो स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, ये इनके साथ कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी। तो इसीलिए दिस वॉज especially so in textile productions, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues. आपको बताई थी फ्यूडल ड्यूज क्या है, एंड ऑब्लिगेशंस। फ्यूडल लॉर्ड्स को टैक्स देना पड़ता था, तो पीजेंट्स को देना पड़ता था, जबकि एरिस्टोक्रेटी एंजॉय पावर एंजॉय करते थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, प्रॉब्लम ये सारे देखो, अनदर प्रॉब्लम, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस इन बेड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन्स एंड कंट्री। तो ये हार्डशिप्स माने स्ट्रगल्स, मुश्किल मुसीबतें कहो। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर, तो इसलिए 1830 1848, तो ये जुलाई रिवोल्यूशन। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। ये है फूड शॉर्टेज होगा, दिस इज बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। भाग गए, इतने होने लगा। यहाँ पे आप पिक्चर्स देखें, पिक्चर्स भी आते हैं कभी कभी, यू कैन सी दिस पिक्चर्स, पीजेंट्स अपराइजिंग, आइडेंटिफाई द पिक्चर करके गिव द कैप्शन ऑफ द पिक्चर, क्वेश्चंस आजकल आ रहा है। तो पीजेंट्स अपराइजिंग इन 1848, ऐसे पीजेंट्स लोग रिवोल्ट करने जा रहे हैं। तो लुइस फिलिप द किंग, ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, भाग निकले, एंड a national assembly proclaimed a republic, granted, now France again became a republic, granted suffrage to all adult male above 21, all adult male। यहाँ पे देखो फीमेल को अभी तक नहीं दिया गया है राइट टू वोट, एंड अनदर वन राइट टू वर्क। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। अभी तक भी फ्रांस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, ओनली मेल वोटिंग सिस्टम था। Earlier in 1845 वेवर्स इन साइलेसिया में भी रिवोल्ट हुआ। ये कभी कभी छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। जस्ट वेवर्स इन साइलेसिया, दे रिवोल्ट, व्हाई दे रिवोल्टेड? अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। वो देता था लेकिन पेमेंट कम देगा, इसीलिए द जर्नलिस्ट विल्हेम ऑफ वुल्फ described the events in a Silesian village as follows. In villages with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for the jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. तो ये साइलेसियन मूवमेंट, ये छोटे स्मॉल क्वेश्चंस आ सकता है, इसीलिए कम्प्लीटली ये देखोगे 4 जून टू at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages। मतलब रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। they were treated with scorn and treats alternatively। तो ये कॉजेस था, एंड दिस फॉर दैट टू अपोज दैट वन, दे कॉन्ट्रैक्टर के ये करके अपोज करके वो स्टार्टेड रिवोल्टिंग। दिस इज कॉल्ड 1830 एंड 1848। तो इस फेज में आपको 2 पॉइंट्स को, एक तो है 1830 में, सॉरी हाँ 1830 रिवोल्ट में आपको ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, देन आपको रोमांटिसिज्म या पोलैंड के बारे में, देन
हंगर हार्डशिप्स मतलब जो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपुल इन दैट टाइम. Then start another part, the revolution of the 1848 and the revolution of the liberals. जो पीजेंट्स वहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे, जो पोर पीपल रिवोल्ट कर रहे थे, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पोर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class underway. It was by educated middle class. Events of February 1848, इसलिए उसको फेब्रुअरी रिवोल्यूशन कहा जाता है, इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क. लुइस फिलिप तो गए, फिर मोनार्की गया, एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हुआ, हैड बीन प्रोक्लेम्ड, बट एक फीमेल नहीं था. इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, सच ए जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये तो अभी तक इंडिपेंडेंट स्टेट हुए ही नहीं है. ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था. मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कॉम्बाइन देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड विथ नेशनल यूनिफिकेशन. ये कंट्री में उनका डिमांड क्या रहेगा, देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना के एक लिबरल नेशनलिज्म या नेशनल यूनिफिकेशन चाहेंगे. 1848 से शुरू हो जाएगा, दैट विल बी स्टार्टेड. दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स ऑन पार्लियामेंटरी principles. This is on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association. मतलब पार्लियामेंट बना के पार्लियामेंट्री प्रोसेस में चाहते थे कि एक नेशन स्टेट्स बनाए जाए. उसी में मेन इम्पोर्टेंट इस पार्ट में है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. ये जो प्रयास था, ट्राइंग टू फॉर्म द नेशन स्टेट, उसमें वन वाज जर्मन. यू कैन से दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. यहाँ नहीं है, लेकिन उसमें इसको अगेन दिया गया उस फेज में. इन द जर्मन रीजियंस ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German national assembly. They wanted. फ्रैंकफर्ट में आके, फ्रैंकफर्ट प्लेस है, वहाँ आके वो एक, इट इज़ इन जर्मन अभी, तो वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली एक बनाएंगे करके वोटिंग करना है चाहने लगे. ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul. बुलाया गया था सेंट पॉल चर्च में. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy. जो कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे उसमें मोनार्किकल गवर्नमेंट हो चाहने लगे उस समय में. सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, मतलब जो राजा होंगे वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहेंगे. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, the king of Prussia. Prussia was the main leading role होगा जर्मन में, जर्मन यूनिफिकेशन में आगे भी. तो प्रशिया का जो राजा थे उस समय में फ्रेडरिक विल्हेम IV, उनको कहा गया अब टू बिकम द किंग एंड जर्मन यूनिफिकेशन होगा, जर्मन स्टेट बनेगा, इसमें रहेगा राजा फ्रेडरिक विलियम IV. ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली. क्यों रिजेक्ट किए? ही डिड नॉट वांट टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि जो राजा होते हैं, एब्सोल्यूट पावर जो जिसके हाथ में है, वो क्यों चाहेगा टू बी कंट्रोल बाय एनी
अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो मना कर दिए। व्हाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिटरी बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल classes who resisted the parliament, who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. तो ये अनसक्सेसफुल रहा। किंग विलियम फोर मना कर दिए, तो अंडर हिज लीडरशिप, अंडर हिज किंगशिप ये यूनिफिकेशन का प्रयास एक था। वो बाकी अदर कंट्री सपोर्ट किए, उनकी सपोर्ट से ये यहाँ पे मना कर दिया। देन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज ए फेल्योर हुआ, ऑफकोर्स नहीं बन पाया, जर्मन यूनिफिकेशन इसमें नहीं हुआ, बट इट वाज द फर्स्ट ट्राई बाय द मिडिल क्लास पीपल। सो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। मतलब अभी तक वुमेन को फ्रांस में वोटिंग राइट नहीं मिला है, मिला भी नहीं, 1946 में मिलेगा। इन which large numbers of women had participated actively over the years. Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. Despite this, they were denied suffrage rights, voting rights, during the election of the assembly. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. To stand in the visitors gallery. तब वुमेन लोगों का, दो फ्रांस वॉज एडवांस बाय द टाइम, बट स्टिल नो वुमेन सफ्रेज, वुमेन फ्रीडम में कमी थी। तो अब ऑब्जर्व करेंगे खड़े होके। ये जो है ये पिक्चर यू कैन सी, दिस इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च सेंट पाउल। ये हियर द वुमेन, ये पिक्चर्स भी आ सकते हैं ऐसे ही। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। अब कंजर्वेटिव ज़्यादा फोर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए, अब लिबरल फोर्सेस नहीं कर पाए, कोई नेशन स्टेट्स बना नहीं पाए। दे कुड नॉट रेस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन पुराने जो है उसको भी नहीं लागू कर पाए। मोनार्क्स वेर बिगिनिंग to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalists and revolutionaries. अब अगर वो एब्सोल्यूट पावर लेकर रहेंगे तो उनको कोई मानेगा नहीं। सो तो रियलाइज करके कुछ कॉन्सेशन, कुछ फ्रीडम वो देना चाहेंगे इन लोगों को। हैंस इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द changes that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom and bonded labor were abolished, both in the Habsburg Dominion याद रखोगे, Austrian Empire में, and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. Austria Hungary, two Hungarians थे, Hungary groups जो Magyars लैंग्वेज कहा करते थे, वहाँ पे पैचवर्क में पढ़े हो। तो ये लोग अभी उनको भी थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी देना शुरू किए, मतलब थोड़ा फ्रीडम देना शुरू किया। अदरवाइज दे थॉट नहीं, उनका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है अपने सत्ता बचाने के लिए। तो फिर आगे हम उसी को देखेंगे, बाद में है 1848 के बाद। दिस द ट्राई इट वाज, बट दो इट विल बी मिडिल क्लास या लिबरल पीपल विल स्टार्ट, बट आगे हम देखेंगे अगेन द जो मोनार्क होंगे या दे विल स्टार्ट अंडर देयर लीडरशिप न्यू नेशन स्टेट्स फॉर्म होंगे। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।